नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे तिरंगी दुनिया में। मैं हूँ सुप्रिया। सुप्रिया की मेरा प्लान था कि मैं एक दिन भुवनेश्वर जाऊंगी और उसी दिन वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे का सेमिनार अटेंड करूंगी और उसी दिन ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन मेरे से हो गया थोड़ा सा गलती, मैंने कर दिया आने वाला टिकट कैंसिल और मुझे उस दिन का मिला नहीं, तो मुझे दूसरे दिन का करना पड़ा और इसीलिए मेरे पास पूरा बच गया एक दिन। इन दूसरे ही दिन रेवेन्सा में ऑब्जर्व किया जा रहा था वर्ल्ड फिलोसॉफी डे। मतलब वर्ल्ड फिलोसॉफी डे एक्चुअली 20 सितंबर में था, लेकिन उनके रेवेन्सा में वो 27 में मना रहे थे और प्रणव ने किया मुझे इनवाइट और मैं चल पड़ी। हमारी थोड़ी लापरवाही के चलते हमने कटक के सारे ट्रेन मिस कर दिए, सो मुझे लेना पड़ा मो बस और मैं चल पड़ी। ये मैं फर्स्ट टाइम के लिए कटक अकेले आ रही थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मो बस से उतरने के बाद मैंने एक रैपिडो बुक किया और बोला कि मुझे रेवेन्सा ले चलो, और वो भैया बोले कि आप कहाँ जाओगे, तो मुझे याद था ललित गिरी हॉस्टल, तो मैं बोली ललित गिरी हॉस्टल ले चलो। और वो भैया जब गाड़ी चला रहे थे तब वो भैया बोल रहे थे कि वो तो मेल हॉस्टल है। मैं बोली हाँ मेल हॉस्टल तो है, क्योंकि मुझे लगा था प्रणव अपने हॉस्टल में होगा। यहाँ चल रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि हाँ हमारा बंधु चलते चलते यूनिवर्सिटी पहुंच गया है और मैं समझी वो हॉस्टल में होगा। हाँ हवा खा खा के उथल पुथल हो गई हूँ। इतना मुझे परेशान करने के बाद ये बंधु को मैं मिल ही गई। शर्म नहीं कुछ नहीं, फालतू से भाग, कुछ मत बोल। मैंने तो आपको रेवेन्सा का इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, आज वो देगा जो वहाँ रहता है, मेरा दोस्त प्रणव। Good morning. My name is Pranav Kirketa and I am basically from Raulkela. Currently I am studying my masters in philosophy in the Ravensa University. We all know Ravensa is one of the best education institute in the whole state. It's not just a matter of pride for the state but also for the India, for the country. Ravensa has played its role in the national freedom struggle as well as at that time when the freedom struggle was going on. It has played a very major and important role in the Odisha politics. And Ravensa became university very later on, but start from the early days it was the Ravensa College. And that time, if I am not mistaken, Ravensa produced some wonderful assets in form of its students who have played major roles in joining politics, in joining medicals, in joining different sorts of sector and proving its iron to the world. And अगर बोला गया है कि who I feel Ravensa is not just an education institute, it's an living legend. Legend in terms of it is living, it's legend in form of its student. And one of the most closest person and the person I admire and the former Ravensa alumni would be Netaji Subhash Chandra Bose. I don't know how much of you know or not, but that time Ravensa was college, Subhash Chandra Bose has studied here. The man, the mystery, the legend. So you can just imagine the kind of student Ravensa had produced and the kind of student they have done their part in for the contribution of the society. There are a number of chief justices, there are a number of high court justices, there are all sorts of people. But when you came to Ravensa, you just one of my teachers has said me, she is very close to me, she said when you go to Ravensa, just go on touching the floors like this, touching the bricks like this. Every brick will say a different story. And coming to the place, I can feel them. I can feel that energy around me. So I am really thankful. And it's a heritage place. It's open for everyone. If one ever get a chance, please come here. Please, it's a must. You will feel the energy of this place. Thank you. एक मज़ेदार बात बताएं, जब रेवेन्सा कॉलेज था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, तो देयर वॉज ब्रिटिश फ्लैग, जहाँ पे आप हमारा फ्लैग देखो उधर उस प्लेस पे, और वहाँ पे रेवेन्सा के जस्ट ऊपर में वो ब्रिटिश फ्लैग लगा हुआ है। तो देयर वेयर सम रेवोल्यूशनरी आइडियाज, सेंटिमेंट्स एंड स्टूडेंट्स, करेजियस स्टूडेंट हु क्लाइम्ड अप एंड दे जस्ट थ्रो अवे द ब्रिटिश फ्लैग एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट टाइम द इंडियन फ्लैग वॉज हेल्ड एट देयर। सो जस्ट इमेजिन क्या हिस्ट्री एंड क्या ग्लोरी है इस यूनिवर्सिटी। आप ये जो ऐतिहासिक हॉल देख रहे हैं, यहाँ उड़ीसा का प्रोविजनल असेंबली मीट 1937 से लेके 1952 तक हुआ था। ये उड़ीसा प्रांत की पहली
निर्वाचित अध्यायिका थी जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। हम जब सेमिनार अटेंड कर रहे थे वहाँ एक सर बहुत ही चिल्ड होके रिलैक्स होके बैठे थे। वो सर थे डॉक्टर प्रतीत पवन दास। जब सेमिनार खत्म होने को आया एंड क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हुआ तब वही सर ही पहले बारी में ही 3 क्वेश्चन पूछे और वो 3 क्वेश्चन बहुत ही वंडरफुल एंड नॉट जस्ट दैट, उनका एनर्जी लेवल वहाँ बैठे हुए सारे यंग बच्चों से ज़्यादा एनर्जेटिक था। ही इज़ द पर्सन जिसके बारे में प्रणब अपना एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे वो कुछ पढ़ा रहे हैं तो किस स्केल पे कितना डीप डाउन जाके किस लेवल का माइंड ब्लास्ट कर रहे हैं। आज मैं जब विटनेस की तब मैं उसके बातों को कनेक्ट कर पाई कि क्यों लड़का कॉल करके बोलता है सर आज ये पढ़ाई वो पढ़ाई, ऐसा कॉन्सेप्ट था। हमारे प्रोफेसर है जो हमें वेस्टर्न मेटाफिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मेटाफिजिक्स मीन्स द थ्योरी ऑफ रियलिटी वेयर वी स्टडी एंड आस्क व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी कैसे बना है, व्हाट्स एक्चुअली ट्रू एंड ऑल सोर्ट्स ऑफ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ लाइफ, व्हाई देयर इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, ऑल सोर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। सो हमारे जो प्रोफेसर है डॉक्टर प्रतीत पवन सर, उनका एक बात हमें बहुत प्यारा सा लगा और रैंडमली वाइल स्टडिंग टीचिंग ही जस्ट सेड कि यार देखो आप लोग जो पढ़ रहे हो वो तो बुक में भी लिखा है बट ये तो आप यूजीसी में पढ़े हो, बट व्हेन यू आर कमिंग टू रेवेंसा वी मस्ट गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा। इफ वी आर नॉट गिविंग यू समथिंग एक्स्ट्रा व्हाट वुड बी द पर्पस ऑफ रेवेंसा बीइंग रेवेंसा, हाउ वुड बी रेवेंसा बी रेवेंसा। रेवेंसा बस नाम का नहीं है ना। सो यहाँ इस आइडियोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है कि रेवेंसा हर बच्चा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन बट वो डेवलपमेंट, वो नरिशमेंट हो रहा है। एंड आई फील हम जो स्टार्टिंग में बोले थे कि कभी सोचे हो क्यों ये डिफरेंस आता है कि रेवेंसा एंड बाकी यूनिवर्सिटी से ये माइंडसेट कि यहाँ प्रिपेयर किया जा रहा है कि अगर आप रेवेंसा आ रहे हो यू मस्ट लर्न समथिंग एक्स्ट्रा, यू मस्ट अचीव समथिंग एक्स्ट्रा एंड इट्स टीचिंग शुड बी रिफ्लेक्टेड इन our personality and ultimately in the society. So thanks to the nature I came here and I invite you all because every brick in Ravensa tells a different story. Come over, see the place, feel the energy around. Have a good day. सेमिनार का डीप डिस्कशन होने के बाद लंच ब्रेक हो गया। ऐसे जितना फ्लैक्स मत करो। रेवेंसा यार, और वो भी कहाँ खिलाया जा रहा है, पूरा व्यू तिरंगा दिखाते हुए। ओह क्या दिख रहा है। मार डालूंगी तुम भी निकल जाए यहाँ से। भक कहाँ, ओह ये है नज़ारे जहाँ जिसको देख के हम लोग खाना खा रहे हैं। ये है आपका तिरंगा। तो कौन सी जगह पे दिखा रहे हो, ना दिख नहीं रहा है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी फिलोसफी की पीजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, अनु, रिया, रश्मि, सागरिका, सभ्य। ये लोग आज का मैनेजमेंट पूरा किए थे और बहुत तगड़ा मैनेजमेंट किए थे। ये लोग गेस्ट से मैनेज करने से लेकर डेकोरेशन तक, खाने तक सारे का बहुत अच्छे से मैनेज किए थे। और मतलब ये लोग अच्छे से खाना तक खा नहीं पाए थे, इतना बिजी थे, सेमिनार अटेंड कर नहीं पाए थे, लेकिन इन लोगों के एफर्ट्स के चलते हमने बहुत एंजॉय किया। सो थैंक यू। हम जब खाना खा चुके मुझे रेवेंसा का एक छोटा सा टूर दिया गया। वो चीफ गेस्ट ये जो गाड़ी का टायर सूंघ रहा है और उस साइड में झंडा ना, हाँ दिखा, चलिए। हमारा डिपार्टमेंट, हाँ जी, हमारा सेमिनार इधर। ये हाँ सेमिनार लाइब्रेरी है, अंदर बुक्स है। अरे एक्चुअली बुक्स है बट अभी ताला लगा हुआ है। बोर्ड वर्क। ये मेरा दोस्त है सबके लड़के मार खाली छोड़ी पटाता है। ए छोड़ी पटाता है हमारा चीज ऑफिस। ओ ये सीट है, यहाँ से पूरा वहाँ तक हमारा ही डिपार्टमेंट है, पूरा एंड तक ना। हाँ मैं देख, उधर उड़िया हिंदी हो जाता है। ये हमारे पीएम का ऑफिस। हाँ ये कौन? अच्छा ठीक। ये है हमारा तक जहाँ पे हमारा लॉजिक क्लास होता है जो कि हम बिल्कुल समझ नहीं पाते। हाय ओके, ये तो अंधेरा है।
तो फोकस किया जाए रेवेंसा। क्या चल रहा है रसू? दिखा तो रही हो, ये क्यों कर रहा है? उसकी वीडियो डाल रहा। अरे ये वही लॉन ना जिसमें तुम हर पढ़ते हैं। वो जगह ना, वो है ना वो टीचर तुम्हारी पढ़ाने वाली, यहाँ एग्जैक्ट यहाँ। यहाँ बैठते हो? कहाँ गए वो टीचर? नहीं दिख रहे। वो तो वो पीछे। किधर? अरे ये तो रही, वो नहीं है, वही है। वही है। तुम्हें नहीं दिखा? अब चिल्लाएंगे इधर टाइम हो गया। इस टाइम पे चलने मना करते हैं। ये तो पसली वाला अगर नहीं है तो इसमें मुझे उड़ाना का कैसे प्लानिंग कर रहे हो? ये असली वाला लैंप है। हाँ, एनीथिंग कैन पॉसिबल इन योर कॉन्टेक्स्ट ना। जैसे कि आप जानते हैं रेवेंसा का हर एक चीज हिस्टोरिकल है, वैसे ही ये लॉन का भी हिस्ट्री है। भारत छाड़ आंदोलन के प्रारंभ काल में उड़ीसा में जब तीव्र आंदोलन दिखने के लिए मिल रहा था, 1942 अगस्त 8 तारीख जब सारे नेता गिरफ्त हो गए थे, तब 14 तारीख 200 छात्र मिलके यहाँ जो ब्रिटिश फ्लैग लगा था यूनियन जैक, उसको नीचे कर दिए थे। हमारे टूर में अभी हम संस्कृत डिपार्टमेंट से होते हुए बहुत ही खास जगह को जा रहे हैं। मेरे से ज्यादा तो तुम्हें मजा आ रहा होगा। ये ऐड करना है तुम इंट्रो देगी इसका कि आपका रेड एम्पायर तो नॉट मेरा। हाँ, तुम्हारा एट प्रेजेंट तो तुम्हारा। अभी हम लाइब्रेरी की ओर गए हैं और हमें दिखा ये पागल लड़का एक्साइटेड था मुझे लाइब्रेरी का लिफ्ट दिखाने के लिए। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक कनिका पुस्तकालय। ये पुस्तकालय 1922 में कनिका के राजा श्री राजेंद्र नारायण भंजदेव के 55,000 रुपये के दान से स्थापना की गई थी। इसीलिए राजा के योगदान के सम्मान में ये पुस्तकालय को कनिका नाम दिया गया। पहले ये एक साधारण पुस्तकालय के हिसाब से शुरू किया गया था। वर्तमान 9,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और यहाँ 2.5 लाख बुक्स हैं। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में भी कभी ख़त्म ना कर पाऊँ। यहाँ एक दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह भी शामिल है। ये भारत के सबसे पुराने पुस्तक संग्रहालयों में से एक है। कनिका पुस्तकालय का वास्तुकला उस समय का स्थापत्य शिला को दर्शाता है। पुस्तकालय का वास्तुशिला उस समय की प्रचलित शैली कॉलोनियल शैली को दर्शाती है, जैसे पुस्तकालय भवन में ऊंचे छतें, लंबे लंबे खिड़कियाँ। आप ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये +2 कैंपस है। ये सामने क्या है बोले? डिस्पेंसरी। अच्छा, अब इधर आएगा गर्ल्स हॉस्टल, पहला पड़ेगा हमारे मैम का हॉस्टल। ओ अच्छा। हाँ चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्या बोले? ये गर्ल्स हॉस्टल पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए यहाँ पे टोटल 6 हॉस्टल है। भार्गवी, दया, देवी, महानवी, काठीजोड़ी एंड पारिजात। वाह वाह वाह, कितना ही दिन रहे, इतना सब रट लिए। सिटी ब्लॉक, हाँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, देन एजुकेशन उसके ऊपर। हाँ, और इसमें है एक स्पेशल इंसान का भी डिपार्टमेंट जो हमारी मैम। ये वही पेड़ का पौधा है जिससे मैम फल तोड़ के खाती थी। कौन ये? ये अनार का है। ये है हॉस्टल के ऊपर बैठा हुआ है प्रणब का प्यारा ईगल, जिसको ये आधा दिन देखता रहता है। और बहुत है यार रेवेंसा में, बहुत। और ये हमारा बैकलॉन स्पोर्ट्स ग्राउंड ये है। देखिए ये है हमारा रेवेंसा चिल्ड्रंस पार्क। यहाँ पे जोर से बोलो। हाँ, सब गाड़ी चला चल के भागे। हाँ, ये हमारे रेवेंसा का अपना चिल्ड्रंस पार्क, जहाँ पे हम लोग जाके लकड़ी की काठी खेल रहे थे। तो चलिए आप। अरे चलिए, आप कौन सा लकड़ी का काठी खेल रहे थे हम भी देखेंगे तुम्हारे दोस्तों के साथ। आप ये देख सकते हैं रेवेंसा का एक खुद का एक रेडियो स्टेशन है। रेडियो ये बच्चे चलाते हैं क्या? मतलब यहाँ के बड़े ऑपरेट करेंगे ऑब्वियसली। ये एक कैंपस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो इनके स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया जाता है। ये है रेवेंसा का प्यारा प्यारा प्लेग्राउंड। इस हम आगे लकड़ी की काठी खेल रहे थे। घोड़ा है वहाँ पे, घोड़ा। हाँ, तुम्हारे कौन प्यारी प्यारों के साथ।
ये ललित गिरी है। ललित गिरी नहीं है, ललित गिरी हॉस्टल है। ये तो ललित गिरी कोई अलग है क्या? ललित गिरी इंसान का नाम है। हाँ तो ललित गिरी हॉस्टल है जहाँ ये हमारा हॉस्टल, ये जहाँ ये अजीब सा बंदर जैसा इंसान रहता है। ये सब नया नया लगा है ना। रात में बना है 1921 में। ये हॉस्टल 1920 में बना है। 1921। वाह। हाँ समझ रहे हो, इंडिया आज़ाद होने के 20 साल 22 साल पहले। मतलब ऊपर से कितना शान से खड़ा है भाई। मतलब सारे तूफान से बच के इंजीनियरिंग नेक्स्ट लेवल का इंजीनियरिंग ना। मेंटेनेंस वर्क हो रहा है बट ऑलमोस्ट द मेन स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट एंड दैट शोज हाउ मच गुड वर्क हैज बीन डन इन दिस एंड it is West Hostel, other part is East Hostel, and East Hostel offer the best food in the whole campus. ये वो आइकॉनिक जगह है जहाँ पे हमारे मैम ने 2 साल यूज़ किया, जहाँ हमें सजेस्ट किया गया, जहाँ सुप्रिया आई है आज। हाँ जी, जिसमें आप पी पी के हर दिन फोटो भेजते हो। चलो, मेरी मैडम एक बार बोली थी कि यहाँ एक पाइनएप्पल का माला है जो देखने के लिए बहुत अच्छा है, और आज मैं अपनी आंखों से देखी। आज हम ऑर्डर किए थे हमारी मैडम का ऑल टाइम फेवरेट लस्सी, और वो लस्सी भी हमारे मैडम के पसंद के जैसा बहुत अच्छा था। ये देखिए हमारा किताब महल। किताब का अलग शोरूम है भाई, मतलब अंदर से देखना भाई। ये किताब महल है, ये स्मार्ट सुपर बाजार है, उसका बिल्डिंग का उतना होगा ये। बाप रे। यहाँ बुक्स और लाइब्रेरी। ये जगह को ऐसे डिज़ाइन किया गया था जैसे आप चाहो तो आप वहाँ घूम घूम के आपका मनपसंद का बुक भी ढूंढ सकते हो, और ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के मुझे भी मेरा सेक्शन मिल गया। ये दोस्तों, मैंने बुक खरीद रही हूँ और मेरा खुद का पढ़ाई वाला, क्योंकि इससे ही ज़िंदगी चल रहा है। कहाँ से? क्या कहाँ से? किताब महल से। किताब महल। बुक खरीद लेने के बाद हम आ गए रेवेंसा के फ्रंट लॉन में बैठने के लिए। यही है ना जिसका फ़ोटो मुझे बहुत बार भेजा जा रहा था। खूबसूरत लगता है ना। मेरी ट्रेन को आने के लिए था बहुत टाइम, तो हमने सोचा फ्रंट लॉन में बैठ के द रेड एम्पायर का इवनिंग ब्यूटी का लुत्फ उठाया जाए। ये अभी हम कहाँ आए हैं? अभी हम खाने के आए हैं। ओरोविल। रोटी का साइज है ना, मेरे हाथ से देखो, मेरे हाथ से कितना बड़ा है ये रोटी। पनीर कैसा दिखा? अच्छा लग रहा है। आपका काटक। ये क्या मंदिर है बीच में? हाँ। क्या ये नया बना है क्या? नहीं, पहले तो अच्छी। ओके, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। नहीं, याद नहीं है कब देखी थी लास्ट टाइम। वाह, कटक। कौन सा टिकट है? किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, पता नहीं किसका। किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का है। और ये हम जन शताब्दी में बैठे, अब जा रहे हैं कटक, सॉरी भुवनेश्वर, क्योंकि हमें भुवनेश्वर जाना था। बाकी पहुंचने के बाद दिखता है। मेरा ट्रेन आने के लिए अभी भी टाइम था। हम जब प्रणब के रिटर्न टिकट काटने के लिए मशीन के पास गए, तब हमें पता चला हमें तो मशीन यूज़ करना आता ही नहीं। इसके बाद हमने यूट्यूब देखा और मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं वो सीखा। मशीन को ऑपरेट करने के बाद ये पागल लड़के को चुल मचा कि ये थोड़ा सोशल वर्क करे, तो ये जो लोग आ रहे थे उनका भी टिकट काट रहा था। Listen, ये है ATBM मशीन। लोगों को यूज़ करना नहीं आता, तो आई एम जस्ट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ रेवेंसा यूनिवर्सिटी। इतने अच्छे एजुकेशन की वजह से हमने सोचा कि बस हेल्प कर देते हैं लोगों का कि वो इजीली घर जा पाए, एंड इस वजह से हमें तो भाड़ा लग रहा है यार, सिर्फ जस्ट फॉर हेल्प 5 रुपये ले लेंगे एक टिकट का। ये कितना सोच रहा है लोगों के लिए, बाप रे बाप। देखो देखो। हाँ, और वहाँ हम टाइम पास ऐसे कर रहे थे लोगों का हेल्प करके। ये मिला पैसा इसको। इसके पीछे एक बार बात है, लेकिन फिर भी चल। पता चला कि ये ऑनलाइन पेमेंट किया था तो कुछ एक्स्ट्रा मिला नहीं, हम लिए नहीं। मेरा अच्छा है, वो भी रेवेंसा के थे इसलिए। इनके सब परिवार मिल जाते हैं इधर। अरे आईडी कार्ड लेके पहचाने यार।
ऐसे ही करके ये 1 2 3 पता नहीं बहुत जनों को हेल्प किया। अभी यहाँ मशीन में ये लोगों को हेल्प करते करते एक टिकट इधर से आया और इधर ही घुस गया और वो इंसान ले नहीं पाया और ये बेचारे ने 30 रुपया गवाया। ये है सोशल वर्क, हैशटैग सोशल वर्क। ये पैसा मत दिखा, अपने अकाउंट से कटवा के तू ये खाली कैश में लाया है, ठीक ना। हेलो गाइस, ये है जूनागढ़ एक्सप्रेस जिसमें जा रहे भवानी पटना, पता नहीं सही सलामत पहुंचे नहीं, हम नहीं आए हैं। ओए, तुमसे दूर जा रही हूँ, सही पहुंचूंगी। ऐसे पहुंच जाएंगे। हाँ, मुझे भी पता है। बाय बाय। चला नहीं है। अपने साथ बहुत सारे कटक और भुवनेश्वर के यादें लेके मैं चल पड़ी अपना करंट प्लेस जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, कलाहांडी। ये सफ़र मेरे उन सफ़र में से था जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती, जहाँ मैं बहुत कुछ सीख पाई। मैं तहे दिल से मैडम अलकानंद फरीदा की शुक्रगुजार हूँ एंड आई हार्टफुली थैंक यू मैम फॉर अलाउइंग मी टू विटनेस द वर्ल्ड फिलोसॉफी डे and the national seminar, which not just gave me some wonderful but life-lasting memories. Not only just memories but also valuable life lessons through this seminar. आज feel हुआ philosophy is not just something to study but actually philosophy is something to practice in daily life. आज मेरे thought process में पड़े preconceptions and limited vision का तबाही हुआ। अगर मुझे पूछा जाए what's the important gift after taking so much stress and hectic journey, तो मैं बोलना चाहूँगी the broader world view। आज मुझे पता चला कि फिलोसॉफी को दर्शन शास्त्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपको दुनिया देखना सिखाता है। तो अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ। और ये है आज के हाइलाइट्स, आज के ये खूबसूरत से दिन में बने हुए कुछ खूबसूरत से रिश्ते।